صاحب پاسٹر صدیق صاحب پاسٹر عرفان صاحب کے لیے دعا کریں گے. جی اب آپ آئے ہم اور خدا اپنے کے ساتھ کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور کورس گائیں گے. ہاللیلویا. لب کو تو کھول مجھ سے تو بول، لب کو تو کھول مجھ سے تو بول، تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں، تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں، تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں، تیری آواز سننے کو بےتاب ہوں. لب کو تو کھول مجھ سے تو بول، لب کو تو کھول مجھ سے تو بول، سہارا نہیں کوئی تیرے سوا، سنبھالوں گا میں ہی تو نے کہا، سہارا نہیں کوئی تیرے سوا، سنبھالوں گا میں ہی تو نے کہا، تیرے قدموں میں آنے کو بےتاب ہوں، تیرے قدموں میں آنے کو بےتاب ہوں. لب کو تو کھول مجھ سے تو بول، لب کو تو کھول مجھ سے تو بول. ہاللیلویا. اب میری ریکویسٹ ہے پاسٹر صدیق صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں پادری صاحب کے لیے، پاسٹر عرفان صاحب کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے. پادری صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو نہیں آواز آ رہی، تو آنٹی نصرت کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے خدا کے خادم کے لیے، پاسٹر صاحب کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے دعا کریں. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful opportunity. آپ دعا کریں آنٹی نصرت، آپ دعا کریں. Thank you, Heavenly Father. We say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Kadosh, 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 Kadosh Adonai Eloheinu Chavinish Shebeshimula. Blessed are you, Lord God, King of the universe, Creator of heaven and earth. Heavenly Father, in the powerful name of Lord Jesus Christ, we honor your name, we praise your name, glorify your name, Lord. We enter into your courts with the praise and in your gates with the thanksgiving, O Lord. Father, we are asking that you come and you are already present here, Lord. Father, we set up your throne here, Lord. You set up the throne here onto the earth. So through the holy sanctuary ministry, we all gather here. We worship you, Lord. Father, thank you for this wonderful privilege that we have in the mighty name of Lord Jesus Christ. Let this meeting be very blessful or fruitful for all of us, Lord. And Father, if there's any of the interruptions we causing, well, the interruption the Satans or anybody is causing, we're rebuking and announcing the work of the enemies in the mighty name of Lord Jesus Christ. Let this meeting go smooth and effective, and let all the internet problem be burned and ceased in the mighty name of Lord Jesus Christ. We're asking, let this meeting go in the presence of the Father, in the presence of the presence of our Father, Heavenly Father, Lord Jesus Christ, smooth and effective in the mighty name of Lord Jesus Christ. Father, we are about to hear your word. Father, we are about to hear the voice of your heart today. Father, we want to know what is in your heart today. And Father, that your servant, Pastor Irfan, is going to bring forth the word that you have for us today. Father, we pray for your blessing be upon us all. We pray for your blessing be upon us
upon him, Lord. We pray for that you pour your spirit onto him, Lord. Holy Spirit, fill him with your presence, O Lord, and give him a word, touch him from, and open his mouth and open his mind and open his brain and give him a word and knowledge. Heart of the Father is today for us, Lord, so we can all be blessed from this, Lord. And Father, we are eagerly waiting for your word today, Lord. Let this word of yours come forth and everything goes smooth and effective in our life, Lord, so we can bear 100% fruit. Open our spiritual eyes, Lord, and pour your spirit onto all of us, Lord. Your Holy Spirit be with us, Lord. Your grace be with us, Lord. And Father, this is for your glory and for your kingdom's sake. We ask that in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो उसके जिंदा कलाम के लिए, उसकी बातों के लिए। हम खुदा हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए अब हम अपने आप को कलाम के लिए हम तैयार कर चुके हैं और खुदावंद के बंदा को हम वेलकम करेंगे और खुदावंद के आवाज को सुनेंगे। तो हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की यहाँ पर हुजूरी के लिए, खुदावंद की यहाँ पर मौजूदगी के लिए, उसके पाक रूह के लिए कि वो यहाँ पर मौजूद है। और खुदा के खादिम को हम जो है वो वेलकम करेंगे। और पास्टर इरफान अशरफ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें। यीशु के बबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। की सलामती हो। नामे मसीहा से है पहचान मेरी, नामे मसीहा से है पहचान मेरी, यही एक नाम है जो मेरी औकात बदल देता है। आज हम खुदावंद के कलाम से जिन बातों से मुस्तफीद होने को हैं, जिन बातों से अपने लिए तंबीह और हदायत को समेटने को हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रूट, यानी कि फल। कलाम मुकद्दस में इंसान को बहुत सी चीजों से मुशाबहत देता है। इनमें से एक मुशाबहत फलदार दरख्त की है। खुदा यीशु मसीह ने इंसान को फलदार दरख्त से इसलिए मुशाबहत दी है कि वो खुदा के ताकिस्तान में रहते हुए फल लाता है। खुदा के ताकिस्तान से मुराद है कि ये दुनिया, इसमें रहते हुए खुदा चाहता है कि उसके लोग फल दे, फलदार उनकी जिंदगी हो। खुदा के कलाम से आज के लिए हमारी जो मरकजी तलावत है वो है लूका की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 6 से 9 आयात। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी उसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और बिलखसूस कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बाइस हो। आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। मुकद्दस लूका की इंजील के 13वें बाब 6 आयत से 9 आयत तक एक अंजीर के दरख्त की तमसील जो आप लोगों के लिए पड़ेगी, जिसमें इंसान को एक अंजीर के दरख्त से तशबीह दी गई है। इस अंजीर के दरख्त को 3 साल के बाद एक और साल भी बागबान की अर्ज और गुजारिश पर मालिक से मिल गया ताकि ये क्या करे, फल लाए। इससे इंसान के लिए ये बात मिलती है कि खुदा इंसान को जितने साल भी अपने ताकिस्तान यानी कि दुनिया में रहने के लिए देता है, वो इसलिए देता है कि इंसान फल पैदा करे, अपनी जिंदगी में अच्छे फल पैदा करे। इसीलिए इंसान, अगर तू गुज़श्ता सालों में अपने खुदा के लिए अच्छा फल नहीं लाया तो इस साल अपने खालिक खुदा के लिए अपनी जिंदगी में फल पैदा कर, ताकि तेरी जिंदगी से
तेरे खालिक खुदा की तमजीद और तारीफ जाहिर हो। मत्ती 15 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप को जो आसमान पर है तमजीद करें। हालेलुया। फल लाने के 3 असूल हैं और खास तौर पर ईमानदारों के लिए बड़ी अहम और सीखने की बातें हैं। खुदा का शुक्र हो कि वो अपने लोगों की जिंदगियों से ना सिर्फ रूहानी फल तलब करता बल्कि अपने कलाम मुकद्दस के जरिए इन असूलों और बातों को भी बताता और सिखाता है जिन पर अमल करने से वो अपने खुदा के लिए बहुत सा फल ला सकते हैं। आज अज़्र बाइबल हम खुदा से इन 3 असूलों के बारे में सीखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर किस तरह फलदार साबित हो सकते हैं, हमारी जिंदगी किस तौर से फलदार साबित हो सकती है। आए खुदा के कलाम से सीखेंगे। 3 असूल आज हम सीखेंगे। पहला जो असूल है, मुकद्दस कलाम को सुनना और कबूल करना। मुकद्दस कलाम को सुनना और कबूल करना। मरकस की अंजील में लिखा है, जो कलाम को सुनने और कबूल करते हैं वो क्या करते हैं? फल लाते हैं। फल लाते खुदा हैं। यीशु मसीह का मुकद्दस कलाम ये साबित करता है कि जो शख्स सिर्फ खुदा के कलाम को सुनता और पढ़ता है लेकिन कबूल नहीं करता, वो कभी फल नहीं ला ला सकता। सकता। बल्कि वो शख्स जो फल लाना चाहता है वो खुदा के कलाम को सुनता है, पढ़ता है और कबूल करता है। इसका मतलब यह है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करता है और अमल करने से उसकी जिंदगी में फल आता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का बंदा याकूब भी अपने खत में मुकद्दसों को नसीहत करता है। वो बयान करता है कि खुदा के कलाम को महज सुनने वाले नहीं बल्कि कबूल करने वाले बनो। ऐसे लोगों को खुदा मुबारक कहता है। लिहाजा इस साल अगर आप ज्यादा फल लाना चाहते हैं, खुदा के हुजूर मुबारक होना चाहते हैं, तो खुदा के मुकद्दस कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि उस कलाम को कबूल भी करें। और जब कलाम को आप सुनेंगे, उस कलाम को कबूल करेंगे, तो आपकी जिंदगी फलदार जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया। 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 प्रेज ये लॉर्ड। पहला असूल था, खुदा के कलाम को सुनना और कबूल करना। दूसरे असूल की तरफ बढ़ेंगे। यूहन्ना 12 बाब में लिखा और उसकी 24 आयत में लिखा, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल जाता है। यहाँ फल लाता है। यहाँ गेहूं के दाने की मिसाल है। यूहन्ना की इंजील 12 बाब में खुदा यीशु मसीह ने ये तमसील एक गेहूं के दाने को पेश किया, जिसको बहुत सा फल लाने के लिए पहले क्या करना पड़ा? मरना पड़ता है। मरना इस पड़ता है। तरह रूहानी तौर पर बहुत सा फल लाने के लिए पहले हमें मरना मरना पड़ता है। होगा, क्योंकि मुकद्दस कलाम में लिखा है जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। लिहाजा जरूरी है कि रूहानी तौर पर फल लाने के लिए हर शख्स मरे। और कैसे मरे? फल लाने के लिए क्यों मरे? ये मैं 5 चीजों से आप लोगों को बताना चाहूंगा। पुरानी इंसानियत के एतबार से मरे। दूसरा असूल हम खुदा के कलाम से सीख रहे हैं, पुरानी इंसानियत के एतबार से मरे। इसके लिए अगर किसी ने रेफरेंस नोट करना है, हवाला नोट करना है, तो वो नोट कर सकते हैं। रोमियो 6 बाब और उसकी 6 आयत। दूसरा, शरीयत के एतबार से मरे, गलीतियों 2 बाब और उसकी 2 आयत। तीसरा, गुनाह के एतबार से मरे। चौथा, दिनवी इब्तदाई बातों के एतबार से मरे, कुलसियों 2 बाब और उसकी 2 आयत। और पांचवा, दुनिया के एतबार से मरे। हालेलुया। पुरानी इंसानियत के एतबार से मरे, शरीयत के एतबार से, गुनाह के एतबार से, दिनवी इब्तदाई बातों के एतबार से और दुनिया के एतबार से मरे। हालेलुया। हमारे लिए याद रखिए, अगर हम फलदार बनना चाहते हैं तो ईमानदार की जिंदगी का एक एक लम्हा मसीह से जुड़ा होना जरूर है। हालेलुया। खुदा हमसे फल चाहता है। खुदा चाहता है
کہ ہماری زندگی پھلدار زندگی ہو. اور تیسرا اصول خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنا. یوحنا 15 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی. اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. میں انگور کا درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پہلا اصول خدا کے کلام کو سننا اور قبول کرنے سے ہم پھلدار ہو سکتے ہیں. دوسرا اصول خدا کے کلام میں جو ہم نے سیکھا ہے کہ جس طرح یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے گیہوں کے دانے کی پیرابل شیئر کی کہ گیہوں کا دانا مر کر پھر پھل لاتا ہے, اسی طرح پہلے ہم نے پرانی انسانیت کے اعتبار سے مرنا ہے, شریعت کے اعتبار سے مرنا ہے, گناہ کے اعتبار سے مرنا ہے, دنوی ابتدائی باتوں کے اعتبار سے مرنا ہے اور دنیا کے اعتبار سے مرنا ہے. اور تیسرا جو ہم نے اصول سیکھا وہ ہے خداوند یسوع مسیح میں قائم رہ کر ہم پھلدار ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب میں جس طرح ہم نے پڑھا اس میں خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کے حقیقی درخت سے تشبیہ دی ہے اور ایماندار اس درخت کی ڈالیوں سے مشابہت رکھتے ہیں. اس پیرابل میں خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتے ہیں جس طرح انگور کے درخت کی ہر ڈالی کو پھل لانے کے لیے انگور کے درخت میں قائم رہنا ضروری ہے, اسی طرح روحانی پھل لانے کے لیے ہر ایماندار کو خداوند یسوع مسیح میں قائم رہنا اشہد ضروری ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یس. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل نہیں لا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں پھل نہیں ہے تو آپ خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں, آپ اس میں پیوستہ نہیں رہے, آپ اس میں جڑ نہیں پکڑ رہے, آپ اس سے دور ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے میرے بھائی میری بہن آپ کی زندگی پھلدار زندگی اب نہیں رہی. ہاللیلویا. 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 آج آپ کو بتاتا چلوں میرے عزیزو, بہت سارے لوگ, بہت سارے خدا کے خدام, ان کو اپنے ویژنز کا, اپنی خدمت کا نہیں پتا اور شاید انہوں نے اپنے اندر اس بات کی جسارت بھی نہیں رکھی کہ اپنے آپ کو وہ سوچ سکے اپنی خدمت کے متعلق کہ میری خدمت جو ہے وہ پھلدار ہے یا نہیں. آج میں آپ کو بتاتا چلوں خدا کا کلام جس روپ جس دور میں بھی آتا ہے اس میں قدرت پائی جاتی ہے. وہ ماضی میں بھی زندگیاں بدلتا تھا, وہ حال میں بھی زندگیاں بدلتا ہے اور مستقبل میں بھی خدا کا کلام زندگیاں بدلتا رہے گا. ہاللیلویا. اور ہم خدا کے کلام کو نہ صرف سننے والے بنے بلکہ اس کو قبول کرنے والے بھی بنے. اب تینوں اصولوں پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. بہت سارے لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے. وہ سنتے ہیں کسی پریئر میٹنگ میں, کسی پریئر سروس میں, چرچ میں, اسی وقت سنتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے. آپ خدا کے کلام کو جب سنیں, پڑھیں, جتنا آپ سننا آپ کے لیے ضروری ہے, جتنا پڑھنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہے اسے قبول کرنا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج لوگ پریشان, ان کی زندگیوں میں پھل نہیں,
क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनते हैं और कबूल नहीं करते, और जब कबूल नहीं करते वो पुरानी इंसानियत के एतबार से ही जिंदा रहते हैं, शरीयत के एतबार से ही जिंदा रहते हैं, गुनाह के एतबार से ही जिंदा, दिनवी बातों के एतबार से जिंदा, दुनिया के एतबार से जिंदा। याद रखिए, जब खुदा के कलाम को हम सुनते हैं, उसे कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर हम ईमान लाते, उसे शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो फिर हम बदल कर और ही इंसान बन जाते हैं। फिर हमारी पुरानी इंसानियत जाती रहती है और हम मसीह में नई मखलूक बन जाते हैं। हालेलुया। Hallelujah. और Yes. फिर गुनाह का, शरीयत का हम पर कोई असर नहीं रहता, हम गुनाह के गुलाम नहीं रहते, और सारी दीनवी बातों को हम तर्क करके हम मसीह की कामिल ज़ाब्ता हयात पर अपनी निगाहें मरकूज कर लेते हैं, और दुनिया के एतबार से फिर हम मर जाते हैं। पौल बयान करता है, पौलुस रसूल बयान करता है, जिसे हम रसूल आज़म भी कहते हैं, वो बयान करता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा। हालेलुया। Hallelujah. और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनकी ये खाम ख्याली है, उनकी ये गलत सोच है, उनको गलत तालीमात ने बर्बाद करके रख दिया है। वो अभी भी सोचते हैं कि हम मसीह से दूर होकर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, खुदा का कलाम जो सच्चा है, जिसमें सदाकत, जिसमें कुदरत पाई जाती है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मसीह खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज मुबारक हैं कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर आप फलदार बनना चाहते हैं तो जरूर है कि आपको पहले मसीह में कायम होना जरूरी है। आप अपने आप को आज ही मसीह में कायम रखना शुरू करें, आपकी जिंदगी फलदार होना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी में फ्रूट ऑफ स्पिरिट्स आना शुरू हो जाएंगे। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में सबसे अव्वल दर्जा देंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ अपनी बरकतों के दरवाजे आप पर खोलेगा, बल्कि अपने रूह की बरकतें, अपने रूह की नेमतें, अपने रूह के फल आपकी जिंदगी में उंडेल देगा, और आपकी जिंदगी फलदार जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया। Yes. Hallelujah. Yes. Lord. Thank you. याद रखिए, आप मुकद्दस कलाम को सुने, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि इसे कबूल करें। मैं चंद बातें मैं आप लोगों से बयान करूंगा। आपकी जिंदगी अगर फलदार जिंदगी नहीं है, तो सिर्फ आप इन बातों पर अमल पैरा होना शुरू हो जाएं, मैं ईमान रखता हूं आपकी जिंदगी फलदार जिंदगी बनना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। Hallelujah. Yes. आप मुकद्दस कलाम को सुने, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि कबूल करें, बयानशुदा बातों के एतबार से मसलूब जिंदगी गुजारें। आप दुनियावी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें, आप सिर्फ एक ही बात सोचिए कि मैं खुदावंद की बादशाहत में दाखिल होऊंगा, खुदावंद यीशु मसीह में मेरे जीवन है, मैंने अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया है, अब खुदावंद यीशु मसीह में मैं पैवस्ता हो चुका हूं। और याद रखिए, जब आप इस कदर खुदावंद यीशु मसीह में पैवस्ता हो जाएंगे, फिर आप खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहेंगे, और जब आप खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी फलदार जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया। Hallelujah. आज हम अपनी जिंदगी में गौर करें, हमारी जिंदगी में गुर्बत, अफलास, बिदात, जनरेशन कर्सेस, इस कदर अंधेरा, इस कदर हमारी जिंदगी में मायूसियां, नाउमीदियां क्यों हैं? क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनते जरूर हैं, लेकिन उसे कबूल नहीं कर रहे। हम खुदावंद के कलाम को सुनकर हमने यीशु मसीह को जीवन भी नहीं दिया,
खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा भी कबूल नहीं किया। हम पुरानी इंसानियत को तर्क नहीं कर रहे और चाहते हैं खुदा यीशु मसीह में चलना, और शरीयत के एतबार से भी हम जिंदा हैं, गुनाहों के एतबार से भी हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी बात यह है कि हम मसीह में कायम नहीं है। हम मसीह में कायम नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि हम बेफल हैं। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है और आपकी जिंदगी को फलदार बनाने के लिए उसने अपना बेशकीमती लहू दिया है, और अपने लहू के वसीला से उसने आपकी जिंदगी में घोटी की है। उसने आपकी जिंदगी को इस कदर आपकी जिंदगी के लिए कफारा दिया है कि आप गुनाहों से आजाद हो जाएं। आपके गुनाहों की मुखलसी उस बर्रे के लहू से हो चुकी है, ताकि आप बेफल न रहे बल्कि आप फलदार बन जाए। आज अपने आप को उस अंजीर के दरख्त से तशबीह दीजिए, उस अंजीर के दरख्त से जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने और साल मांग दिया है। अगर आप बेफल हैं, खुदावंद के कलाम को सुनना और कबूल करना शुरू कीजिए, अपनी पुरानी इंसानियत को तरक कीजिए और मसीह यीशु में कायम रहिए। आपकी जिंदगी फलदार जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज आप खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहना शुरू करें। मत देखिए कि आपकी जिंदगी में हर्डल्स हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन की कश्ती में सवार खुदावंद यीशु मसीह है, जिसका हुक्म पानी और हवा मानते हैं, जिसको पानी और हवा पर भी अख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है और उसका कोई भी इरादा रुक नहीं सकता। आज वो चाहता है कि आप उसका हाथ थाम कर उसमें कायम रहना शुरू कर दे, आपको वो फलदार बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यस। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करना शुरू करें। आज जो बेफल हैं, खास तौर पर वो अपनी जिंदगी पर गौर करें, और जो अभी तक फलदार नहीं हुए, जिनके रास्ते में हर्डल्स या रुकावटें हैं, आज से वो मसीह में कायम रहना शुरू हो जाए। आज के कलाम के वसीला से खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो उसके जिंदा कलाम के लिए और खुदा के खादिम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो हम खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, दुआ करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है